بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون شہادت آرڈر 1984 ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کی ریویژن کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ریویژن کے دوران ان ڈیٹیلز کی طرف نہ جائیں جو ہم نے ابتدائی طور پر کی تھی، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، تاکہ ساری اس کی پروویژنس، انیکٹمنٹس، آرٹیکل ذرا آپ کے ذہن میں فریش ہو جائیں۔ ان میں سے ہم تیزی سے گزریں گے، لیکن اتنی تیزی سے بھی نہیں گزریں گے کہ اس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ تو قانون شہادت آرڈر جو ہے 1984، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قانون شہادت جو ہے وہ پہلی دفعہ 1984 میں آیا۔ اس سے قبل 1872 کا ایکٹ، جس کا ٹائٹل تھا لا آف ایویڈنس، وہ نافذ تھا، اور 1872 بھی ایک دم سے نافذ نہیں ہو گیا۔ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ انیکٹمنٹس لا آف ایویڈنس کو بنانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے انٹروڈیوس کروائی گئی، اور سیریز کی صورت میں، یعنی 1835 سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی۔ پھر 1837 میں ایک ایکٹ آیا، پھر 1840 میں، پھر 1844 میں، پھر 1852 میں، اور پھر 1853 میں۔ 53 کے بعد 1855 کا ایکٹ، اس کا امپرووڈ ایڈیشن تھا۔ تو یہ کہاں سے یہ اس کے رولز انہوں نے گیدر کیے تھے؟ انگلش کامن لا سے، اور انگلش جو پریکٹس تھی ایویڈنس کے نقطہ نظر سے ان کی کورٹس میں، ان رولز کو اوریجنلی جب انگریزوں نے ہندوستان کو اپنی کالونی بنا لیا، تو 3 جن کو پریزیڈنسی ٹاؤنز کہتے ہیں، کلکتہ، بمبے اور مدراس، ان میں لا آف ایویڈنس 1726 میں جو ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ ڈیسیژن کیا کہ ان تینوں شہروں میں جو رولز ہیں وہ وہی فالو کیے جائیں گے ایویڈنس کے جو انگلستان میں کیے جاتے ہیں، اور بقایا تمام سٹی اور مفصل یعنی متحدہ عدالتوں میں کوئی باضابطہ اسکیم آف ایویڈنس نہیں تھی۔ کسٹمری طریقے سے اور ہندو جو اصول تھے ان کو، اور کئی جگہوں پر مسلم اصول جو تھے ایویڈنس کے، ان کو فالو کرتے ہوئے، تو آپشن تھی کورٹ یا جج کے لیے کہ جو بھی وہ پروسیجر اڈاپٹ کرتا۔ لیکن پھر جب یہ 1835 سے ایکٹیویٹی شروع ہوئی، تو یہاں سے کوشش کی گئی کہ تمام عدالتوں میں ایویڈنس کے رول جو ہیں وہ ایک طرح کے یونیفارم جو ہیں وہ نافذ کر دیے جائیں۔ جو مختلف مراحل میں جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ انگلستان کی ہوئی اور ان کا عدالتی نظام جو میچور ہوا، اس کے ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے لیے ادھر بھی اس سے استفادہ کرنے کے لیے مختلف انیکٹمنٹس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور فائنلی 1872 کا ایکٹ جو تھا وہ نافذ تھا۔ اسی کو ہی پارٹیشن کے بعد لا آف ایویڈنس کے طور پر انڈیا نے اور پاکستان نے اڈاپٹ کیا۔ اسی کے تحت عدالتیں جو تھی وہ ڈیسیژن کرتی تھی۔ لیکن پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں، یعنی ان کا مارشاء اللہ کا دور تھا، اس میں اسلامائزیشن کا پروسیس شروع کیا گیا۔ اسلامائزیشن کا پروسیس جو تھا عدالتی اور قانونی نقطہ نظر سے، اس کا سیدھا جو یعنی اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ قوانین جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے ریپگننٹ نہیں ہونے چاہیے، ان کے مطابق ان کو ڈھالنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے اس کے پریمبل میں، یعنی قانون شہادت آرڈر 19، تو اس میں لا آف ایویڈنس کا میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ قانون شہادت لفظ جو ہے ہمارے اردو میں بھی اور عربی میں رائج ہے، تو یہ ورڈ بھی چینج کر دیا گیا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اسکیم کیا تھی، کہ اس لائن کو جو انگلستان کے تحت لا آف ایویڈنس ادھر نافذ تھا، اس سے اس کی جگہ یہ نیا آرڈر لے کے آنا، جس میں کوئی ڈراسٹک چینجز نہیں ہوئی۔ بہت سی پروویژن جو ہیں وہ سبجیکٹ وائز سیم ہیں، ماسوائے
सर्टन प्रोविजंस के, और उनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनमें हम जहाँ जहाँ वो आएंगी उनका हम जिक्र करेंगे कि ये ओल्ड में नहीं थी, नई इंसर्ट की गई, तो उसको सिर्फ इस बुनियाद पर तब्दील किया गया। यानी अब अगर हम इसकी तशरीह करें कि बेशतर वही प्रोविजंस अगर इसके अंदर मौजूद हैं, तो सब्जेक्ट वाइज तो सेम है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज सेम होने के बावजूद ऑब्जेक्ट वाइज सेम नहीं है, तो दोनों में फ़र्क है। इसका मकसद इस्लाम के मुताबिक, अभी मैं इसकी प्रियम्बल आपके सामने पढ़ूंगा, डालना था। और अब कानून शहादत को जब भी कोर्ट सप्लाई करेंगी उसके इस मकसद को पेश नज़र रखते हुए तशरीह की जाएगी। जबकि ओल्ड लॉ ऑफ एविडेंस जो था वो फैक्ट्स की असर्टेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता था। ज़ाहिर है फैक्ट्स जो हैं कंट्रोवर्टेड होती हैं, दोनों तरफ से मुतजाद मौक़िफ़, एक दूसरे की नफ़ी करने वाली बातें अदालत के सामने एक पार्टी दावा करती है, दूसरी जवाब दावा में टोटली उसके क्लेम का डिनाइल कर देती है। तो ऐसी सूरत हाल में किसी नतीजे पर पहुंचना और डिसीजन देना और फैक्ट्स को असर्टेन करना, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा मीडियम है जिससे अदालत ये डिसीजन कर पाती है, तो यकीनन वो कानून शहादत ही है। तो कानून शहादत लॉजिक और रीजनिंग को पेश नज़र रखते हुए कंक्लूजन ड्रा करने के लिए, और एविडेंस की एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी की सारे असूल आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें थी इसलिए कि फैक्ट्स को असर्टेन किया जा सके ताकि राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज की डिटर्मिनेशन हो सके। क्योंकि अदालत के सामने जब भी कोई मुकदमा आता है, जब भी कोई काज आती है, तो किसी ना किसी राइट की, किसी ड्यूटी या लाइबिलिटी की डिटर्मिनेशन होती है। तो उनको डिटरमिन करने के लिए एविडेंस जो है वो कोर्ट की मदद करता है। लेकिन एविडेंस, अब कानून शहादत ऑर्डर से जो एविडेंस का असूल है वो अडॉप्ट किया जाएगा जो इस्लाम से मुताबिकत रखने वाला है। यानी अपनी अकल को अपने शऊर के मुताबिक जिस तरह का तरीका चाहें या जिस तरह के कंक्लूजन चाहें उससे ड्रा नहीं करेंगे। उन मेथड्स को पेश नज़र रखा जाएगा, उन असूलों को पेश नज़र रखा जाएगा जो कुरान और सुन्नत में बयान हुए हैं शहादत के नुक्ता नज़र से। तो ये प्रिलिमिनरी बात मैंने इसलिए की कि भाई आप ये ना समझें कि ये फिर एक्सरसाइज क्यों की गई कि अगर बेशतर प्रोविजंस वही बरकरार रखी हैं तो उसी के अंदर उन एरियाज में अमेंडमेंट कर लेते जहां पर रिक्वायर्ड था, जो नई चीजें इंसर्ट करनी थी उनको कर देते, जिनको रिपील करना दरकार था उनको रिपील कर लेते, तो ये इजी था। लेकिन इससे मकसद जो हासिल करना था वो मकसद हासिल नहीं होता। मकसद हासिल करना इसका जो है वो प्रियम्बल में बयान हुआ है, अगर आप इसकी रीडिंग कर सकें तो प्रियम्बल, whereas it is expedient to revise, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with injunction of Islam. कुरान के अहकामात, इस्लाम के अहकामात के मुताबिक इसको कंफर्म करना, यानी उससे मुताबिकत पैदा करने के लिए ये लाया गया है। और इंजेक्शन ऑफ इस्लाम कौन से? एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, जिस तरह कुरान और सुन्नत में बयान हुए हैं उनके मुताबिक, अगरचे इसको रिवाइज करना भी दरकार है, अमेंड करना भी दरकार है, और शहादत के असूलों को इकट्ठा करना भी एविडेंस के दरकार है। ये तीनों इसके अंदर मुकासद मौजूद हैं। रिवाइज भी किया जाएगा, कंसोलिडेट भी किया जाएगा और अमेंड भी किया जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ किया क्यों जाएगा? जिस तरह मैंने कहा कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव क्लास जो है या इसका जो मकसद है उसके साथ इसको जोड़े रखना और तशरीह और उसकी रोशनी में करना। यानी आप कानून शहादत के असूलों की तशरीह जो प्रिवी काउंसिल के डिसीजन है या हाउस ऑफ लॉर्ड के डिसीजन है या इंग्लिस्तान के कॉमन लॉ के जो असूल हैं उन्हीं के मुताबिक करना मुनासिब ना होगा। इसकी तशरीह करते वक्त आपको एंटायरली कुरान और सुन्नत के असूल जो हैं या इस्लाम के जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में तरीक़ेकार जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सी प्रोविजन वो होने के बावजूद यहाँ से इसका सिलसिला जो है वो प्रीवियस
जो तमाम सिलसिला ऑफ एविडेंस का चला आ रहा था उससे एक तरह से ट्रैक इसका तब्दील हुआ, इसको कुरान और सुन्नत से जोड़ दिया गया। Now therefore the pursuance of the proclamation of the 5th day of July 1977 and in exercise of our powers enabling him in that behalf, the president is pleased to make the following order. तो चूंकि पार्लियामेंट नहीं थी उस वक्त, मार्शल था, और मार्शल अथॉरिटीज जो थी यानी प्रेसिडेंट खुद ही मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे जौलक साहब और प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए ये लॉ जो था वो दिया। कब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये 26 अक्टूबर की बात है, और उस वक्त मुहर्रमुल हराम का महीना था और 1405 हिजरी थी जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसके 3 पार्ट्स हैं अलग अलग। अगर आप इसकी स्कीम की तरफ जाएं तो स्कीम में 3 पार्ट आपको इसके विजिबली नजर आएंगे। आपको 3 पार्ट कौन से? एक तो फैक्ट्स की रेलेवेंसी की बात है कि इसमें रेलेवेंट फैक्ट्स का जिक्र आएगा, और दूसरी इसके अंदर जो बात है वो है प्रूफ के हवाले से, जाहिर है फैक्ट्स को प्रूफ करना पड़ेगा। और लास्ट पार्ट जो एडमिशन यानी मीडियम है एविडेंस का, उसके मुतल्लिक। तो 3 इसके मेजर पार्ट जो हैं उनको हम अलग अलग देखेंगे, उनके अंदर जो असूल। एक थोड़ी सी इसके अंदर यानी आप कहें कि इस स्कीम के अंदर थोड़ी सी डेविएशन ये है कि एविडेंस के हवाले से यानी विटनेसेस के हवाले से कुछ चीज़ें, ये रेलेवेंसी का चैप्टर शुरू होने से कबल आपको पता है आर्टिकल 3 से लेके ये 17 तक विटनेसेस के मुतालिक कुछ बातें हैं। तो ये पार्ट जो है ये लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन इब्तदाई तौर पर इसलिए सेटल कर दिया गया कि आपके ज़हन में रहे कि भाई कौन लोग शहादत देने की अहलियत रखते हैं और कहाँ पर उनकी प्रिविलेज जो है लॉ उसको एडमिट करता है। तो ये थोड़ी सी उससे डेरोगेशन है, आप यूँ कहें कि स्कीम की। तो 3 पार्ट इसके रेलेवेंसी फैक्ट्स, ये आर्टिकल 18 से शुरू होगा इम्पोर्टेंट पार्ट, ये चलेगा 69 तक, और उसके बाद फिर प्रूफ की बात जो है वो शुरू हो जाएगी। यानी फैक्ट्स को प्रूव करने के हवाले से अगर आप इसके इंडेक्स को आप देखें, इसके अंदर पार्ट 3 बनाए हुए, अगर आपके पास इसका इंडेक्स है तो 3 पार्ट आपको विजिबल नजर आए। पहला पार्ट जो है उसको रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स का नाम दिया गया, लेकिन रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स का नाम देके प्रीलिमिनरी पार्ट भी इसमें शामिल किया गया, विटनेसेस की बात भी इसके अंदर शामिल की गई। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये चैप्टर 3 से बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स जो है वो शुरू होती है, लेकिन उस पार्ट पूरे को, पहले वाला पार्ट भी उसके अंदर डाल दिया गया। पहले वाला पार्ट जो है स्ट्रिक्टो सेंसो रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स से रिलेटेड नहीं है, वो विटनेसेस से रिलेटेड है, या इनेक्टमेंट जो है इसके कमेंसमेंट, इसकी एक्सटेंशन, या इसके टाइटल की इब्तदाई बात, या इसकी इंटरप्रिटेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है, उनकी बात करता है। तो ये यहाँ से फिर इसके बाद जो दूसरा प्रूफ के हवाले से पार्ट है वो 2 है, और वो चैप्टर 7 से शुरू होता है, और उसके 3 पार्ट हैं चैप्टर 7 के। एक तो ऐसी फैक्ट्स हैं जिनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और फैक्ट्स को साबित करना किसकी जिम्मेदारी होती है? जो फैक्ट्स को असर्ट कर रहा होता है। तो फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव कौन सी होती हैं? आपने पहले पढ़ा हुआ है ऐसी फैक्ट्स। ऐसी जब हम जिक्र करें तो आप अपने ज़हन पे साथ साथ थोड़ा जोर भी देना है कि इस तरह की बातें भला आपको आती हैं या नहीं आती, यानी कौन सी फैक्ट्स हैं जो जिनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी फैक्ट्स जिनको एडमिट कर लिया जाए, एडमिटेड फैक्ट्स, या ऐसी फैक्ट्स जिनका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता हो, उन फैक्ट्स को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बकाया फैक्ट्स को साबित करना किसकी जिम्मेदारी है? जो पार्टी अपने राइट्स उस पर डिपेंड कर रही है
یا کسی کی لائبلٹی یا آبلیگیشن جن فیکٹس کی بنیاد پر وہ اسرٹ کر رہی ہے، تو جو پازیٹیولی چیزوں کو اسرٹ کرے گی ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ پروف کی صورت میں یعنی شہادت لائے گی فیکٹس کو پروو کرنے کے لیے، تو اورل طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتی ہے، اورل طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتی ہے پارٹی، یا ڈاکومنٹس، تو یعنی کس طرح کا ایویڈنس لائے۔ اور تیسرا جو اس کا پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن اینڈ ایفیکٹ آف ایویڈنس، اس میں بیسیکلی یہ اصول تھے جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی کس پارٹی کو ثابت کرنا چاہیے۔ برڈن آف پروف جو ہے یہ چیپٹر 9 سے شروع ہوگا اور آرٹیکل 117 برڈن آف پروف کی بات کرتا ہے۔ اب ذرا ہم اس کے ابتدائی پریلیمنری پارٹ جو ہے فرسٹ، اس کا چیپٹر نمبر 1، اس کے اندر 3 چیزیں یہ آرٹیکل 1 میں آئی ہیں۔ شارٹ ٹائٹل، اس کا مختصر نام، سارے ہی انیکٹمنٹ کا نام ہوتا ہے جس طرح آپ کے نام ہیں، کس لیے ہوتا ہے نام؟ شناخت کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ایکسٹینڈ کے کہاں تک یہ نافذ ہوگا اور نافذ ہونے کی تاریخ کون سی ہوگی، کمنسمنٹ، یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ آرڈر میں بھی کارڈ دا قانون شہادت آرڈر 1984 اس کا یہ نام ہے۔ It extends to the whole of Pakistan، سارے ہی پاکستان میں نافذ ہے۔ And applies to all judicial proceeding، تمام قسم کی عدالتی کاروائیاں جو ہیں ان میں یہ اپلائی ہوتا ہے۔ کہاں پر کاروائیاں ہوتی ہیں؟ ان اور before any court، کسی عدالت میں، کسی عدالت کے سامنے جو بھی عدالتی پروسیڈنگ ہوگی، عدالتی کاروائی ہوگی، اس میں یہ استعمال ہوگا، انکلوڈنگ کورٹ مارشل، یہ جس کو عرف عام میں ہم فوجی عدالت کہتے ہیں۔ تو کورٹ مارشل جو تھا، لا آف ایویڈنس اس پر اپلائی ایز سچ نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ اسلامائزیشن کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے تھا، اور لاسٹ میں یعنی لاسٹ سے سیکنڈ لاسٹ جو آرٹیکل ہے آپ نکال کے پڑھ بھی لیجئے گا، پچھلی دفعہ میں نے کنکلوڈ بھی کیا تھا کہ اس کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ دیا گیا تھا، یعنی تمام دیگر جو شہادت کے اصول تھے، پہلے بینکنگ کے طریقوں پر بھی وہاں کے جو بینکنگ پریکٹس تھی ان کو پرائرٹی دی جاتی تھی، کورٹ مارشل کا طریقہ کار بھی کوئی لا آف ایویڈنس کے اصول جو ہے وہ پوری طرح لاگو کرنے کی ضرورت نہ تھی، اس کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ حاصل نہیں تھا۔ لیکن قانون شہادت آرڈر جو ہے اس کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے۔ اوور رائڈنگ ایفیکٹ سے آپ یوں کنکلوڈ کر لیں کہ جہاں کہیں بھی جوڈیشل پروسیڈنگ ہوگی، چاہے کوئی ٹریبونل ہو، چاہے کوئی ماشاء اللہ کی عدالت ہو، یا وہ عدالتیں ہوں جو سول کرمنل جن کو ہم جانتے ہیں، جہاں پر بھی عدالتی پروسیڈنگ ہوگی، شہادت کس کے مطابق لی جائے گی، کن اصولوں کے مطابق لی جائے گی؟ انہی اصولوں کے مطابق جو قانون شہادت آرڈر میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ جو لاسٹ میں تھا وہ دیا گیا اسی وجہ سے، اور ادھر یہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ یہ ایکسٹینڈ ہوگا سارے پاکستان میں، اور اپلائی ہوگا کہاں پر؟ ظاہر ہے یہ کوئی ریونیو کلیکٹ کرنے والا یا فریقین کے رائٹس اور ڈیوٹیز کو ڈیفائن کرنے والا لا تو ہے نہیں، ایڈجیکٹو لا ہے، پروسیجرل لا ہے کہ عدالت کے اندر شہادت اور پروسیجر کا بھی کون سا پارٹ یہ کنٹرول کرتا ہے، کس کے اصول بیان کرتا ہے؟ شہادت کی۔ شہادت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ اگر شہادت کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں تو کوئی بھی فیکٹ کی کنٹروورسی جو ہے وہ عدالت کے لیے ڈیٹرمن کرنا ممکن نہ ہو۔ کنجکچرل طریقے سے یا کشف سے یا وجدان سے عدالت کسی نتیجے پر پہنچے تو بھلے پہنچے، لیکن کہے کہ فیکٹس کی کھوج لگا کے ٹروتھ کو ڈیٹرمن کر کے نتیجہ اخذ کیا ہے، تو شہادت میں جو اصول ہیں شہادت کے، یا شہادت کو ریکارڈ کرنے کی جو اہمیت ہے، اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو عدالتی کاروائی میں شہادت کی بہت اہمیت ہے۔ تو شہادت بھی ظاہر ہے جس طرح کی جس کا جی چاہے اٹھا کے لے آئے نہیں ہے، کون سی فیکٹس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، کون سی چیزیں شہادت میں آ سکتی ہیں، اس کے بھی اصول ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہ عدالت کو شہادت کو ریکارڈ کس طرح کرنا ہے، کون سی پارٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر ذمہ دار ہے، تو یہ سارے اصول شہادت کے نقطہ نظر سے جہاں پر اپلائی ہوگا یہ لا آف ایویڈنس، اگرچہ یہ پروسیجرل ہے، سبسٹانٹیو نہیں ہے، پروسیجرل ہے، لیکن پروسیجر
सारी अदालती कार्रवाई का ये डिटरमिन नहीं करता, सारी कार्रवाई का सिविल प्रोसीजर कोड दीवानी मुकदमात का करता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल मैटर का करता है। लेकिन ये किस मैटर की तरफ रहनुमाई देता है, ये असूल शहादत के मरहले पर अप्लाई होते हैं। शहादत वाला सारे जो पार्ट है वो इसी के दिए गए असूलों के तहत डिटरमिन होता है। ए ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स, अदालती या नीम अदालती जो भी काम किया जाएगा ऑफ जुरिस्डिक्शन बट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। महज सालिस जो है वो इसके असूलों का पाबंद नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है इसको इस कानून शहादत ऑर्डर ने तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन ज़ाब्ता दीवानी के अंदर डेफिनेशंस के एक्सप्रेशन जो बयान हुए हैं, अगर आप उनमें पढ़ें तो पता चलता है कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर मैटर को डिटरमिन करने के लिए शहादत ली जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। यानी एविडेंस जहाँ पर लिया जाएगा वो जुडिशियल प्रोसीडिंग करार पाएगी। तो इसका ताल्लुक भी कानून शहादत का भी एविडेंस से ही है। तो एविडेंस चूंकि आर्बिट्रेटर जो है वो भी फरीकैन को सुन सकता है, सालिस कोई आदमी भी हो सकता है, वो किसी कंप्रोमाइज या पार्टी के दरमियान सुलह के तहत सुलह के असूल अप्लाई करते हुए वो सालसी उनकी करवा रहा होता है। जबकि आम अदालती तरीक़ेकार में एक पार्टी का गवाह हो दूसरी पार्टी की मौजूदगी में ही एविडेंस देगा, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ओथ पर एविडेंस देगा। तो जब ये असूल साल्स पर अप्लाई नहीं होंगे इसलिए कि वो अपना तरीक़ेकार अडॉप्ट करे, क्या पता मेडिएशन के लिए एक फरीक को अलग से सुने, दूसरे गवाह का किसी वक्त बयान, दोनों को आमने सामने लाए या आमने सामने ना लाए, तो वो उसने खुद उनके अंदर पेनिट्रेट होकर, फिर ये भी कि वो खुद कोई अदालती बैकग्राउंड रखने वाला आदमी नहीं भी हो सकता। अब कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन के इशू होंगे तो उन पर कोई इंजीनियर आर्बिट्रेटर हो सकता है, कॉमन आदमी कोई उस तरह के मामले को समझने वाला हो सकता है जो अदालती और कानूनी मैटर्स को मे भी उस नोयत से ना समझता हो। तो महज तो इसलिए आर्बिट्रेटर जो है उसको इससे एक्सेम्प्ट रखा गया कि वो प्रोसीडिंग जो है वो अपना तरीक़ेकार अडॉप्ट करके कर ले। बकाया तमाम जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन करने वाले ट्रिब्यूनल हैं, अदालतें हैं, चाहे कोर्ट मार्शल हो, वो इसी असूल के तहत या इसके दिए गए रूल्स के तहत ही जो है एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे और इसके सारे असूल उन पर लागू होंगे। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जब 26 अक्टूबर को नाफिज किया गया तो इसकी आगे कोई नफाज की तारीख नहीं रखी गई कि ये 1 नवंबर से नाफिज होगा, तो फौरी तौर पर इसको नाफिज कर दिया गया। इंटरप्रिटेशंस, इसके अंदर सर्टेन एक्सप्रेशन जो है उनके इंटरप्रिटेशन जो है इसके अंदर दी गई है। हर इनएक्टमेंट में इंटरप्रिटेशन क्लास जरूर मौजूद होती है। कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई सेक्शन हो सकता है जिसके अंदर अगर ये जो ऊपर वाली तीनों चीज़ें बयान हुई हैं इन पर कई एनेक्टमेंट में अलग अलग सेक्शन होते हैं, यानी कानून का नाम रखने वाला एक सेक्शन, फिर कहाँ पर वो अप्लाई होगा उसकी एक्सटेंट को बयान करने वाला दूसरा सेक्शन, फिर किस तरीके से नाफिज होगा वो एक तीसरा सेक्शन, और फिर इंटरप्रिटेशन जो है इसका भी शुरू में ही जिक्र होना बड़ा ज़रूरी है कि ये इब्तदाई तौर पर ही आएगी। तो अगर ये तीनों पार्ट जो आर्टिकल 1 में हमने पढ़े हैं उसकी 3 क्लासेस ये अलग अलग सेक्शन हो या अलग अलग आर्टिकल हो तो फिर ये चौथा बन जाएगा इंटरप्रिटेशन। तो वही एक में चौथा होता है, लेकिन बहुत सौ में ये सेकंड होता है जब पहली तीनों चीजें एक ही सेक्शन में या एक ही आर्टिकल में बैन कर दी जाए तो नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन वाला आ जाता है। सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज पाई जाती है कि उसके एक्सप्रेशन जो है, इंटरप्रिटेशन जो है, उनको इब्तदाई तौर पर बयान नहीं किया गया, उनको आर्टिकल 260 में बैन किया गया है, 260 में अलग से उनको बैन किया गया।
लेकिन बकाया तमाम इनेक्टमेंट का ये पार्ट शुरू में होता है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये होता है कि उसके अंदर, उस इनेक्टमेंट के अंदर, उस स्टैट्यूट के अंदर जहां जहां वो अल्फाज इस्तेमाल होंगे उनके मानी जो उस स्टैट्यूट में मुतय्यन कर दिए जाते हैं उनकी लाइट में उनकी तशरीह की जाएगी, उनकी लाइट में उन चीज़ों को देखा जाएगा जो एक्सप्रेशन इब्तदाई तौर पर बयान कर दिए गए। कोर्ट इंक्लूड्स all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। अब कोर्ट मीन्स नहीं कहा, कोर्ट इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स मराद कि उसमें शामिल है। तो अदालत के जो मानी आम तौर पर हैं, एक ऐसी प्लेस जहां पर कंट्रोवर्सी को जुडिशली डिटरमिन किया जाता है, उसको हम कोर्ट कहते हैं। तो वो मानी भी इसके मौजूद ही है। और साथ कोई भी जज या मजिस्ट्रेट या दीगर अफराद, यानी उनका नाम चाहे जज और मजिस्ट्रेट ना हो, रेंट कंट्रोलर हो या कोई और ट्रिब्यूनल का नाम हो, तो दीगर पर्सन भी जो लीगली यानी जिस लॉ के तहत वो इम्पावर्ड हैं एविडेंस लेने के, कानूनी तौर पर प्रोसीडिंग करने के, तो उसके तहत काम कर रहे होंगे, तो उसको कोर्ट समझा जाएगा। यानी एविडेंस रिकॉर्ड करके जो फैसला सादर करेंगे उनको हम कोर्ट कहेंगे। आर्बिट्रेटर को इधर भी इस्तिस्ना, क्योंकि आर्बिट्रेटर साल्स होता है, वो कोर्ट नहीं होती। जिस तरह भी हम पहले भी उसको उन्होंने इस्तिस्ना दिया था कि ये सारों पर अप्लाई होगा सवाए आर्बिट्रेटर के। इधर कोर्ट की जब तशरीह की गई तो उसमें से इसको साल्स को फिर निकाल दिया गया है। डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस या तो ओरल हो सकता है या डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। तो इसलिए ये भी जायज़ और मुनासिब था कि डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर डिफाइन किया जाए। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इस्तेमाल हुई है, ये भी उसी को फॉलो करते हुए इधर भी इसको बयान किया गया कि डॉक्यूमेंट से मराद कोई स्टैम्प पेपर नहीं कहा गया, डॉक्यूमेंट से मराद कोई कागज नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया है कि इससे मराद है, डॉक्यूमेंट्स से मराद है कि कोई भी मैटर जब डिस्क्राइब किया जाएगा किस चीज पर, ऑन एनी सब्सटेंस, कोई चीज भी हो सकती है, कोई पत्थर पर लिखी हुई जैसे कतबा होता है ऐसी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, महकमा जंगलात के दरख्त पर उसका नंबर लिखा हुआ होता है, मार्क्स के जरिए, फिगर्स के लिए, वर्ड्स के जरिए कोई भी चीज उस पर एक्सप्रेस की गई है। और कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। पुराने दौर में खजूर के पत्ते इस्तेमाल हो जाते थे। तो ये नहीं कहा कि कागज पर या स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ हो। अब कोई और लाभ हो सकते हैं जो इस तरह की पाबंदी लगाएं कि भाई अगर ये मुआहदा कर रहे हैं तो इतने के स्टैम्प पेपर पर, तो अब उस तरह के मुआहदे की कोई ट्रांजैक्शन कोर्ट के रूबरू आएगी तो देखा जाएगा कि भाई उस तरह किया गया जो उसकी फॉर्मेलिटी ले डाउन की गई थी। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लीगली डॉक्यूमेंट्स का दर्जा देने के लिए उनको जो एग्जीक्यूट करने का तरीका है या उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना भी दरकार होता है। लेकिन कानून शहादत को उस डॉक्यूमेंट के बनाने से गर्ज नहीं है। ये डॉक्यूमेंट बनाने वाला लॉ नहीं है कि प्रोसीजर बताता हो कि भाई इसे इस तरह तैयार करो। ये तो शहादत में जो किसी भी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट होगा वो लाएगा। इसलिए इसने उस नुक्ता नजर से बयान किया कि भाई कोई भी सब्सटेंस पर मैटर जो है एक्सप्रेस किया गया हो, चाहे अल्फाज की सूरत में हो, चाहे हिंसों की सूरत में हो, चाहे निशानात की सूरत में हो, या इनमें से एक या ज्यादा तरीके इस्तेमाल करके बनाया गया हो, लेकिन इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जिसका मकसद उसको इस्तेमाल करना था
और which may be used या इस्तेमाल हो सकता था for the purpose of recording that matter। यानी सीरियस इसी तरह ही नहीं है कि भाई ऐसे निशान लगाता रहा, खेलता रहा, चीजें लिखता रहा तो वो कानून शहादत का डॉक्यूमेंट है। पार्टीज के दरमियान जो एक पार्टी दूसरे के खिलाफ अगर कंट्रोवर्सी हो तो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए सामने लेके आती है बात डॉक्यूमेंट की सूरत में, तो उस नुक्ता नज़र से कि इंटेंडेड टू बी यूज और मे बी यूज, यानी जब उनके दरमियान तनाज़ा होगा तो वो चीज़ सबूत के तौर पर आएगी। तो पार्टीज ने सीरियसली अपने दरमियान जो मैटर थे, जो ट्रांजैक्शन था, उसको सेटल किया हुआ है। डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें उन्होंने विजिबली और वाज़े तौर पर लिखी हुई हैं, तय की हुई हैं, और अगर उनका तनाज़ा होगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे। ये इस नुक्ता नज़र से बनी हुई चीज़ जो है, ज़ाहिर अदालत में अब तनाज़ा आया हुआ होगा तो वो पार्टी लेके आएगी वो डॉक्यूमेंट जो उसको फेवर करता होगा, दूसरी पार्टी जो है उसके अगेंस्ट होगा तो वो उसको लेके आएगी। तो इसलिए इसका इस्तेमाल का जिक्र आया कि इंटेंडेड टू बी यूज, यूज किसने करना है, फरीकैन ने करना है जिनके दरमियान तनाज़ा है। तो एक पार्टी दूसरे को पाबंद करने के लिए या उसकी कही हुई बातें साबित करने के लिए या दोनों के दरमियान जो चीज़ें सेटल हुई हैं उसके सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंट लाती है, तो उसको लॉ ऑफ एविडेंस ने इब्तदाई तौर पर डिफाइन किया। इसी तरह एविडेंस को भी इंक्लूड से, तो जब इंक्लूड से किसी चीज़ को डिफाइन किया जा रहा होता है तो उससे ये भी नजर आता है कि उसके मीनिंग को एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी को हतमी नहीं है। उसको मानी दिए जरूर दिए गए हैं लेकिन इस तरह के नहीं है कि उसके अलावा कोई हो ना सके। तो एविडेंस इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स which the court permits are required to be made before it by witnesses। गवाहान की तरफ से जो भी बयानात अदालत के रूबरू दिए जाएंगे, जिनकी अदालत उनको इजाजत देगी, परमिट से मराद है गवाह आया हुआ है तो अदालत की इजाजत से बयान देगा। रिक्वायर का लफ्ज इस तरफ इशारा कर रहा है कि भी अगर गवाह अदालत के जरिए तलब किया है तो अदालत उसको तलब करेगी कि आओ बयान दो। तो विटनेसेस जो है उनकी स्टेटमेंट, लेकिन विटनेसेस की सारी स्टेटमेंट जो है वो एविडेंस नहीं है। इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ द फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो मैटर अंडर इंक्वायरी है उससे रिलेटेड बातें एविडेंस होंगी, इधर उधर की बातें एविडेंस नहीं होंगी। उनकी स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने किस के हवाले से, मैटर अंडर इंक्वायरी के हवाले से जो है वो एविडेंस बनेगी। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। इनको ओरल एविडेंस और हिंदुस्तान के लॉ में इसको टेस्टिमनी कहते हैं, यानी ज़बानी शहादत, जिसका हम उर्दू में कहते हैं कि भाई ज़बानी शहादत हो गई। ज़बानी से मराद वो गवाह जो है अदालत के रूबरू खड़ा होकर अदालत उस स्टेटमेंट को अगरचे तहरीर करती है, ऐसे नहीं है कि सुन के ही उस पर फैसला कर देती है, उसको डॉक्यूमेंट में लाती है, यानी उसकी तहरीर बनाती है, कोर्ट तहरीर बनाती है। लेकिन इस स्टेटमेंट को, इस बयान को समझा जाता है कि ये ओरल स्टेटमेंट है क्योंकि उसने बोलकर अदालत के रूबरू पेश की गई। तो ओरल एविडेंस हो सकता है या दूसरी सूरत ऑल डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स, अभी जो हमने डेफिनेशन में पढ़े, विच कोर्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो अदालत के मुलाहिजा करने के लिए पेश किए गए, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनको दस्तावेजी शहादत कहते हैं। तो दो तरह से शहादत आ रही होती है, एक ओरल और दूसरी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। क्रिमिनल अगर मैटर हो तो उसके अंदर मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उस वक्त ये बयान किया था तफसील में, जब हम क्लास में पढ़ रहे थे, कि वहाँ पर एविडेंस जो है वो तीन तरह से आ रहा होता है। टेस्टिमनीज की सूरत में, जिसको आप ओरल एविडेंस कह लें, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, जिसको हम दस्तावेजी शहादत कहते हैं, और एक रियल एविडेंस भी आ रहा होता है, यानी असल आर्टिकल चीज़ें जिससे कत्ल किया गया वो चीज़ आई, या मकतूल के आखिरी पहने हुए कपड़े आए, तो ऐसी चीज़ों को हम रियल एविडेंस कहते हैं। तो इंग्लिस्तान के लॉ में भी, इंग्लिश लॉ में भी ये तीन पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और रियल एविडेंस। तो इधर डॉक्यूमेंट्स को ज़रा फैला दिया गया कि जो चीज़ भी कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, तो अब आखिरी पहने हुए कपड़े भी आते हैं तो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए,
تو اس کو ذرا انہوں نے وسعت دے دی. لیکن جس طرح انگلستان کے لا میں یا انگلش لا میں چیزیں ہیں، کرمنل میٹر میں اسی طرح ہی شہادت جو ہے جب ڈاکومنٹس ایگزیبٹ ہوتے ہیں تو ان کو ایگزیبٹ پہلا ڈاکومنٹ ہو تو ایگزیبٹ اے، اور اگر کوئی آرٹیکل پہلا ایگزیبٹ ہو رہا ہو کس پارٹی کی طرف سے ہے اس کا بھی ذکر اگر پروسیکیوشن کی طرف سے آ رہا ہے ڈاکومنٹ آ رہا ہے تو ایگزیبٹ پی اے لکھا ہوگا. اگر ریئل کوئی چیز آ رہی ہے یعنی مقتول کے آخری پہنے ہوئے کپڑے آ رہے ہیں یا وہ ویپن آ رہا ہے یا چلے ہوئے کارتوس آ رہے ہیں تو جو پہلے چیز آئے گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایگزیبٹ P1. تو 3 طرح سے اورل ایویڈنس ایگزیبٹ پی اے یعنی اے بی سی سے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہوں گے ان کو اس طرح ایکسپریس کر دیا جائے گا، اور اگر ریئل آرٹیکل ہوں گے تو ایگزیبٹ P1 2 3 سے. تو یہ ریئل کا پارٹ ادھر ڈیفینیشنز میں شامل نہیں ہے، 2 ہی پارٹس ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایگزاسٹو نہیں ہے، انکلوڈ سے انہوں نے بات کی، تو جو چیزیں روایتی طور پر اس کے طریقہ کار کے اندر ایڈمیسیبل ہیں وہ اب بھی ایڈمیسیبل ہیں، ان کو اس نے ایکسکلوڈ نہیں کیا. انسپیکشن کا لفظ ڈاکومنٹس کے ساتھ استعمال کر لیا کہ بھئی اس کو ہم ڈاکومنٹری ایویڈنس کہیں گے جو انسپیکشن کے لیے. تو آپ اس کو ذرا براڈ سینس میں لے لیں کہ جو ریئل